لیکن بہت سے لوگ جو سردی کی وجہ سے اپنے باتوں سے غافل ہیں۔ جب بھی نیا سال آتا ہے بڑی بڑی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، لوگ وقت کے بارے میں اپنی اپنی رائے دیتے ہیں۔ 1967 کا واقعہ ہے، ایک بڑی پیشن گوئی کی گئی کہ اس صدی میں یعنی 2000 سال تک ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آدمیوں کو تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا، ایک ہفتے میں صرف 5 گھنٹے ایک آدمی کام کرے، باقی سارا کام ٹیکنالوجی کرے گی۔ اور اس وقت فکر یہ لاحق تھی کہ انسان جو ان کے پاس فارغ وقت ہے اس کو کس طرح سے گزارے گی، لیکن آج تک یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی۔ 2023 آ گیا، ماندرو سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم جلدی جلدی کھاتے ہیں، جلدی جلدی چلتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں بھائی جی میرے پاس وقت ہوا تو میں آپ کے ساتھ وقت گزاروں گا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ماندرو آج میرا مان ہے کہ آج کا کلام جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے آپ کی زندگی کو بدل جائے گا، آپ وقت کا بہترین استعمال کر سکیں گے۔ بائبل مقدس میں ہم نے تلاوت سنی ہے کہ اس لیے وہ فرماتا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ۔ یہاں پر جو سونے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو روحانی طور پر سوئے ہوئے ہیں۔ مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ اصل ترجمہ گریک ورڈ ہے، وہ ہے مسیح تجھ پر چمکے گا۔ مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح تجھ پر چمکے گا۔ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو۔ کلام کہہ رہے ہیں کہ کس طرح ہم چلتے ہیں، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کیا ہے۔ ہر ایماندار کے لیے یہ کلام ہے کہ وہ اس سال میں خدا کی مرضی کو سمجھ لے کہ میرے لیے خداوند تیری مرضی کیا ہے۔ شراب میں مت والے نہ بنو، یہاں پر جسمانی خواہشوں کی آسودگی کی بات کی گئی ہے کہ شراب میں مت والے نہ بنو، اس سے بد چلنی پیدا ہوتی ہے، بلکہ روح سے مامور ہوتے جاؤ، آپس میں مزامیر گیت اور روحانی غزلیں گایا۔ تو روحانی غزلوں کے لیے جو گریک ورڈ ہے اس کا مطلب ہے سانگ آف دا ہولی اسپرٹ۔ روح القدس کے گیت گاؤ، روح القدس سے مامور ہو کر سنگ ان دا ہولی اسپرٹ، سنگنگ ان دا ادر ٹنگس، غیر زبانوں میں چرچ کے اندر دلیری کے ساتھ بولے اور آپ کی روح آزاد ہو جائے، آپ آزاد ہو جائیں گے اور خدا ایک نیا کام کرے گا۔ دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ شکر کرتے رہو، تو مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے ساتھ رہو۔ مانتے رہو یہ حوالہ، یہ پورا پیسج، اس میں جس بات پر ہم غور کریں گے وہ ہے وقت کو غنیمت جانو۔ غنیمت جاننے کے لیے گریک ورڈ ہے ایساجو روزو، اس کا انگلش ترجمہ ہے کمپلیٹلی آؤٹ آف دا مارکیٹ پلیس۔ وقت اتنا قیمتی ہے کہ یہ مارکیٹ سے ختم ہو رہا ہے کیونکہ ابلیس وقت کو چرا رہا ہے، اس لیے وقت کو سردی سے خرید لو، مارکیٹ سے آنے سے پہلے ہی اس کے پیسے ادا کر دو۔ وقت اتنا قیمتی ہے کہ وقت کو سنہری موقع سمجھو، خدا کا اسے قابو میں کر لو، کوشش کرو کہ تمہارا وقت ضائع نہ ہو جائے کیونکہ ابلیس آپ سے آپ کے وقت کو چرا رہا ہے۔ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہر ایک چیز برابر میں نہیں ملی، مانتا ہوں کسی کے پاس گاڑی ہے کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کا اپنا گھر ہے کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن وقت سب کے پاس ہے۔ برابر موقع ہے ہر بندے کے لیے کہ وہ وقت کا کس طرح کا استعمال کرتا ہے۔ ایمانداروں کے لیے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے جو مسیح میں ہے
वक्त को इस तरह इस्तेमाल करो, तुम इस तरह बदल जाओ कि जमीन पर ही आप आसमान पर चले। आपकी जिंदगी अब्दियत के लिए तैयार हो। इस जमीन पर आप ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष जिंदा रहेंगे, लेकिन अब्दियत में हमेशा हमेशा तक जिंदा रहेंगे। इसलिए अपने वक्त को इस तरह से गुजारो कि आप अब्दियत के साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाए। ईमानदार हो, इसलिए कि तुम्हारा भलाने वाला भी पाक है। इस जमीन में मैंने कहा सदा नहीं रहेंगे, लेकिन जो वक्त हम गुजारते हैं ये दो तरह के वक्त है। एक तो वक्त है ये घड़ी का वक्त, ये भी कीमती है, ये कीमती वक्त है। इसलिए के लिए हमने पिछले मैसेज में सीखा तलब खैरोज वक्त, जिससे साल महीने वक्त हम गुजारते हैं, ये घड़ी का वक्त है। और मैंने कहा ये भी बड़ा कीमती वक्त है, लेकिन यहाँ पर बात इस वक्त की नहीं हो रही, ये उस वक्त की बात हो रही है जो बहुत कीमती है। इसके लिए लफ्ज़ कायनोस, ये वो घड़ी है जब रूहुल कुद्दस, जब कलाम आपकी जिंदगी में आ जाता है और आप बदल जाते हैं। ये कीमती वक्त है, इसको जाया ना होने दो। 4 बातें हम नए साल के तलक से, वक्त के तलक से सीखेंगे ताकि हमारी डायरेक्शन बेहतरीन हो इस नए साल में। पहला काम है कि अपने दुआ की घंटों की गैरत के साथ हिफाजत करें। जो भी वक्त आपने खुदा के लिए छुड़ाया है, दुआ के घंटे बढ़ाते चले जाएं, ज्यादा से ज्यादा दुआ में ठहर जाएं। क्योंकि अमान करो, एक बात यकीनी है, जब आप दुआ करेंगे तो हजारों चर्चे हैं पाकिस्तान में। जब यीशु मसीह के नाम से दुआएं होंगी तो पाकिस्तान पर आसमान खुल जाएगा, आसमान पाकिस्तान पर खुल जाएगा, बरकत आ जाएगी, जिंदगी आ जाएगी। याद रखिए, इस दुनिया के मसाइल का हल हुकूमतें कायम की गई हैं, इसलिए कहा गया है कि हुकूमतों के ताबे रहो, लेकिन हुकूमतों के पास दुनिया के मसाइल का हल नहीं है, एनजीओज के पास नहीं है, पार्लियामेंट के पास इन मसाइल का हल नहीं है। ईमानदारों, इसका हल कलीसिया के पास है, ईमानदारों के पास है, क्योंकि उनके पास यीशु मसीह है और यीशु मसीह हल कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कलीसिया के पास यीशु मसीह का नाम है, ये पार्लियामेंट के पास नहीं है, ये एनजीओज के पास भी शायद नहीं है। कलीसिया दुनिया का नूर है, जमीन का नामक है, लोगों को महफूज करें। खुदा आपकी तरफ देख रहा है, खुदा आपके वसीले से लोगों को बरकत देना चाहता है, पाकिस्तान को बचाना चाहता है, और उनमें यीशु का नाम जो सब नामों से आला है, जिसके आगे हर एक घुटना, खास जमीनियों का, खास मानियों का उनका जो जमीन के नीचे है झुकता है, वो नाम आपके पास है। इसलिए ईमानदारों, कलीसिया के पास ताकत है, इसलिए जो काम कलीसिया कर सकते हैं वो और कोई कर ही नहीं सकता। अब मुझे इस बात की समझ नहीं कि दुआ और खुदा के काम का आपस में ताल्लुक क्या है, क्यों खुदा हमारी दुआओं के वसीले से लोगों को बरकत देना चाहता है। तो आगे बगैर भी काम तो हो जाना चाहिए, तो फिर वाई डू वी हैव टू प्रे, क्यों हमें दुआ करनी है? काम वैसे भी होना चाहिए। मैंने कहा इस बात का मुझे पूरा इल्म नहीं है, लेकिन जितना इल्म है मैं वो आपके साथ बांटना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप दुआ करते हैं आप खुदा के साथ उसके काम में, उसके मंसूबे में शामिल हो जाते हैं, और जब आप बाप के साथ काम करते हैं तो आप बाप को समझना शुरू हो जाते हैं, आप मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, आप में कुव्वत आ जाती है और आप बड़े बड़े फैसले करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दुआ के अंदर ये पावर है। अच्छा, सिर्फ दुआ मांगना ही नहीं, दुआ ये भी कहना है, लॉर्ड आई एम ऑन ड्यूटी, What I have to do, खुदा मैं ड्यूटी पर हूँ, मनु दास मैं क्या तेरे लिए करूँ। ये पोजीशन ईमानदार को ताकतवर बना देती है। जब आप कहते हैं यस लॉर्ड, ये दुआ है ईमानदारों। मैं चाहता हूँ फरूज की किताब, एक दुआ है, वाकया पढ़ा,
बड़ा ही दिलचस्प है कैसे दुआ के वसीले से खुदा अपने लोगों को आजाद करता है। फिरोज की किताब 17 बाब है, 8वीं आयत में वाकया बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकले हैं और अमालेकी उनके आगे आ गए हैं। अभी ये कमजोर नेशन है, ये इतने ताकतवर, इतने अमान में भी मजबूत नहीं, इनकी मेंटालिटी लेवल अभी गुलामी का है। बाहर निकले हैं और खुदा ने मूसा से कहा है जंग अमालेकियों के साथ है। अब क्या करता है, यहोशू अपनी फौज के साथ मैदान जंग में है और मूसा पहाड़ पर चढ़ता जा रहा है, उसके साथ हूर और हारून है। और बाइबल बताती है जितनी देर मूसा के हाथ आसमान की तरफ हैं इसराइल जंग जीतता है। जब हाथ नीचे होते हैं अमालेकी गलबा आ रहे हैं, ईमानदारों, मूसा थक जाता है। मूसा थका हुआ है, अब करते क्या है, हूर कहता सर जी पत्थर है, आप इस पर बैठे, मैं दुआ को ऊपर उठा के रखता हूँ, आप थक जाए बैठ जाए, लेकिन दुआ बैठनी नहीं चाहिए। ईमानदारों, आप बैठ जाए लेकिन हाथ ऊपर रहने चाहिए। एक तरफ से हारून ने उठाया हुआ है, एक तरफ से हूर ने उसका हाथ थामे हुआ है और इसराइल शाम तक फतह याब हो जाते हैं। ईमानदारों, अब जब हम अगर देखें तो जंग तो कौन लाटा है, यहोशू लाटा है, लेकिन जंग पहाड़ पर हो रही है। ईमानदारों, जब आप दुआ में ठहर जाते हैं तो ठीक हकीकत में आप जंग कर रहे हैं, आप इब्लीस के साथ लड़ रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती है लोग के हथियार बंद और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुम्हारा कुछ बगाड़ ना होगा। ईमानदारों, नो स्टॉप, दुआ में कोई वक्फा नहीं है। ये बड़ा मुश्किल काम था। ईमानदारों, मुश्किल काम है, जान फसानी का काम है। दुआ भी एक जान फसानी का काम है, इजी जॉब नहीं है, इसलिए कुछ करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ जितने वालदेन हैं, जितने दादियाँ दादे हैं, ओल्ड लाइक ऑफ मूसा की तरह हैं, अपने हाथों को अपने बच्चों के लिए कभी नीचे ना आने दें। इससे आपके बच्चों की तरक्की होगी और वो दुनिया की जंगें जीतते ही जाएंगे। अच्छी एजुकेशन, अच्छी नौकरियां, अच्छे रुपए जितने कमा सकते हो कमाओ, लेकिन इनको सेव करने का बेहतरीन तरीका भी मैं आपके साथ रखना चाहता हूं ताकि आप इस साल में खुशहाल जिंदगी गुजारें, अच्छी जिंदगी आपकी बन जाए। तो इसके लिए ईमानदारों बेहतरीन तरीका है 10% लाइए खुदा चाहता है। ये यकीनन मेरे मैसेज का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहुत ही जरूरी बात है, इसलिए मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, क्योंकि हम सोचते हैं शायद हम फायदा कर रहे हैं अपना, लेकिन हम अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ना ये मेरा है ना आपका है, ये खुदा का। हम सोचते हैं भाई खुदा हमें 90 पैसे क्यों नहीं दे देता, 100 रुपया देकर 10 चीज देना चाहता है, तो वो तो हर एक चीज का मालिक है, वो हमें 90 दे दे, मुश्किल ना बने। मंदिर खुदा आपके पैसे के साथ दखलंदाजी करना चाहता है, वो अपने आपको बरकत देना है, वो आप पर छोड़ना चाहता है कि आप अपना फैसला करें, आप अपना बेस्ट खुदा को दें। खुदा कर सकता है, खुदा आपको वैसे ही गरीब रख सकता है, लेकिन वो आपको अमीर करना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि आपके पैसे के साथ दखल अंदाजी करे। बाकी कितने रह गए, 90 रह गए, तो हम हदीजे दही की जागी, तो हम हदियां कितने कर लिए 5% के लिए भाई ना देना, तुम आपको तो सही भी 5%, पर सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब साढ़े पैसे पीछे पड़ गए, मैं नहीं बोला। खुदा आपके पैसों के पीछे पड़ गया, मानता रहो। खुदा आपको अमीर करना चाहता है, खुदा आपकी बीमारियों को आपसे किस जिस्मों से निकाल देना चाहता है। और पते की अगली बात ये है, क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी डायरेक्शन इन द न्यू ईयर है, नए साल से ये डायरेक्शन है जो मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ बांधूं। पते की बात ये है कि जितने भी आपके पैसे हैं, 90 रह गए पीछे भी, 90 से पीछे 5 निकाल लिए, 85 रह गए, तो कम से कम 1%, 2%, बेशक 100 रुपया सेव करो, वो जरूर करो, पैसे सेव करो, फिर आप गरीब नहीं होंगे। खुदा उन पैसों में बरकत डालना शुरू कर देगा, क्योंकि खुदा
चाहता है आप माली तौर पर खुशहाल रहें और आप पर कर्जाई न हो। शायद कुछ खर्चे आपको कम करने पड़ते। कंट्रोल जोर मनी, अपने पैसे को कंट्रोल करें। इस साल में खर्चे महदूद करें, पैसे कुछ बचाएं, जितने बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी, सबसे उत्तम बात, सबसे कमाल बात कि अपने बच्चों के लिए दुआ में ठहरें, क्योंकि ये सारी दुआ के हमारे दुआ पर जोर दें। तो फिर जब आप दुआ करेंगे तो तेरा तल्लक खुदा के साथ रहेगा, तेरा दिमाग रूहानी बनता जाएगा और तू मजबूत होता जाएगा। दूसरी तवारीख 7वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत पढ़ने लगा कि खुदा आपको डरा भी रहा है, वो बताना भी चाहता है कि क्यों ऐसा करें। लिखा है, अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सर बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान से सुनकर उन लोगों को माफ कर दूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। अमान ये खुदावन कहता है। इसके साथ इकोनॉमिकली इसराइल का तल्लुक इसलिए बारिशों के साथ था क्योंकि वो बारिशों पर डिपेंड करते थे। लेकिन ईमानदारों के लिए ये बात इस तरह है कि अगर मैं आसमान को बंद कर दूं ताड़ियां करतूतां की वजह तो तुम दया घुट के बैठे हो। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं, मीना बरसे, आप पर रूह कुद्दस नाज़िल ना हो, आप पर उसकी बरकतें नाज़िल ना हो, तो जिंदगी बड़ी अजीरन हो जाएगी। अपनी सिकूतें आपको पकड़ लेंगी, आप बिल्कुल मुश्किल जिंदगी में आ जाएंगे। ईमानदार, अगर मैं आसमान को बंद कर दूं, रूह कुद्दस नाज़िल करूं, बरकत ना हो, तरक्की ना हो, तो तुम बेचैन हो जाओगे। टिड्डियों को हुक्म दो, मात्र टिड्डियां ईमानदारों की चमड़ियां, शुगर भी एक टिड्डी है, बीमारियां, मुश्किल हालात, जो मुल्कों में वबाएं आ रही हैं, ये टिड्डियां हैं, ये सराफ्तर थैलियां हैं जो आपके रुपये पैसे को खत्म कर रही हैं। आप सोच रहे हैं हमने बड़े बचा ले हैं, यकीन देती भाई 1000 ना गुजारा नहीं हो गया तो 900 ना की तरह हो जाएगा। अमान करो 900 बरकत के साथ, 1000 रुपया लानत के साथ। फैसला आपने करना है कि खुदा टिड्डियों को डांटता है, खुदा आसमान को खोलता है। वह तरीका जिसमें वो कह रहा है मेरी आजमाइश करो, नए साल पर मैं चाहता हूँ कि गुड लाइफ चर्च अमीर से अमीर होता जाए। और यही वह तरीका है। वैसे आप जितने मर्जी पैसे कमा लें, आप कामयाब नहीं होंगे। आज हमारा मुल्क उजड़ने की तरफ जा रहा है। हमारी मैशत, हमारी अखलाकियात, हमारे महकमे, हमारी अदालतें अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, बीमारियां भेजूं, उन चीज़ों का खुदामंद हमें जो ईमानदार है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ ना देखते रहे। मैंने कहा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ ना देखे। लिखा है तब अगर मेरे लोग, गॉड्स पीपल, जो मेरे नाम से कहलाते हैं, क्रिश्चियन लोग, खाकसार होकर दुआ करेंगे तो मैं मुल्क को बहाल कर दूंगा। एक ईमानदार के वसीले से मुल्क बच जाएगा। अमन करो, दुआ में हम तब्दील हो जाते हैं, दुआ हमें तब्दील करती है। यीशु मसीह जब पहाड़ पर दुआ कर रहा था तो लिखा है सूरत तब्दील होगी। कब होगी? जब वो दुआ कर रहा था। तो कितने घंटे दुआ करता होगा? एक जगह पर लिखा है जब वो सूरज डूब रहा था और बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पास आ गई, तो लिखा है वो उनके सर पर हाथ रखकर बुतरूहों को नकारा बीमारियों से, और लगता है सुबह से यीशु शाम तक दुआएं करता है। यीशु ने दुआ के घंटों की फिक्र की है, इसलिए वो चाहता है कि हम अपने दुआ के घंटों की गैरत के साथ फिक्र करें। बाज़ औक़ात हम दुआ के जरिए लोगों की ज्यादा मदद कर सकते हैं। दुआ में हम तब्दील होते हैं, दुआ में हम नए होते जाते हैं, दुआ में हमारी
ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، آزمائشوں پر غالب آتے ہیں، عذاب رسانی میں دلیری اور قوت ملتی ہے، حکمت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری بات جلدی سے کروں گا، شاگردیت، ڈسائپلشپ۔ چرچ کو شاگردوں کی ضرورت ہے اور خدا چاہتا ہے ایسے شاگردوں۔ لوکا کی انجیل 14 باب کی 25 آیت میں ہے لکھا، جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی بچوں اور بھائیوں بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ لوگ سمجھیں ڈیل نے روٹیاں کھانیاں تو مچھیاں کھانا کی ہوئی شاگردی ہے، ہی بڑیاں تالیاں بجائیں، یہ زیادہ مشکل چیز ہے۔ تو سارے سوچنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ خدا نے کہا اس کا مطلب یہ ہے شاگردیت یسوع مسیح کو سب رشتوں سے بڑھ کر محبت کرنا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں ڈسائپل سے کہ شاگردیت فل ٹائم کرسچن بننا ہے، فل ٹائم مسیحی بننا ہے، ہر وقت یسوع کو یس کہنے کا نام ہے۔ یسوع مسیح میں حاضر ہوں تیرے کام کے لیے، یہ نہیں کہ سردیت آج بسترے جو بیٹھی ہے، یہ شاگردیت نہیں ہے۔ امان کرو یسوع دی مرضی۔ رسول کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، جو مسیح کہے گا میں وہ کروں گا۔ یہ شاگردیت ہے، میں اس کے ساتھ مرتا ہوں، اس کے ساتھ زندہ ہوں۔ آج امان کرو میں نے کہا چرچ کو شاگردوں کی ضرورت ہے، خدا چاہتا ہے شاگردیت قائم ہو۔ امان کرو تیسری بات ہے نیو ڈائریکشن ان دا نیو ایئر، اس کو کسی ٹائم پھر ڈسکس کریں گے، یہ لمبی بات ہے۔ چوتھی اور آخری بات پر جانا چاہتا ہوں، مسیح کی دوسری آمد کی زندہ امید میں چلے۔ یہ مبارک امید ہے کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، جیزس از کمنگ سون۔ یہ چرچ کی زندہ امید ہے، اس میں زندگی بسر کریں۔ بعض کا یسوع کی پہلی آمد پر بھی لوگ سوچ رہے تھے کہ کسی پیشن گوئی کی تکمیل ہی نہیں ہوتی، کچھ سچ ہے کہ نہیں، 400 سال تک کوئی نبی نہیں ہے، کوئی پیغام نہیں ہے، لوگ مایوس ہیں۔ لیکن بائبل کہتی ہے جب وقت پورا ہو گیا، جب پہلی آمد پر کلام سچا ثابت ہوا تو اب بھی ہوگا۔ اگر وقت کا تعین کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں وقت کا تعین ہو جائے تو اسرائیل کا ملک خدا کا خیال ہے۔ ٹائم دیکھنا ہے تو پھر اسرائیل کی طرف دیکھیں، کیونکہ بائبل مقدس کہتی تھی کہ اسرائیل اپنے ملک میں واپس آئیں گے۔ امان دارو اسرائیل پہلی صدی میں یعنی 70 عیسوی میں تتر ہو گیا، کوئی ملک میں آدمی نہیں تھا۔ سلطنت میں عربی آ گئے، سلطنت عثمانی آ گئی، برٹش راج آ گیا اور ان پر اسرائیل پر حکومت کرنے لگا۔ پھر سیاسی پنڈت کہنے لگے یہ کبھی ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اتنے سال گزر گئے، اسرائیل اپنے ملک میں نہیں ہوں گے۔ لیکن اندر ایک مومنٹ آ گئی، برطانیہ کی توپوں کا پاؤڈر ختم ہو گیا، اس وقت توپوں میں پاؤڈر ڈالا جاتا تھا، اب اسلحہ جدید ہے اور ایک یہودی نے وہ پاؤڈر تیار کیا، اب اس سے وہ پاؤڈر مانگتے، وہ کہتا ہے اگر کوئی سارے ورگا ہوں گا نا تو سودا کر دیتے ہیں، سانو امریکہ لا جاتے ہیں، اماندر ہماری بہت جتنی ہے۔ اس نے کہا ہمیں آزاد ملک چاہیے تو پاؤڈر دینا مرضی لے جاؤ۔ انہوں نے کہا یس ہم یہ کریں گے۔ یونائٹڈ نیشن میں اعلان ہو گیا 14 مئی 1948 میں، جو کام ناممکن تھا، اسرائیل آزاد ہوگا اور اس کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ یہ خدا کا وعدہ تھا۔ ایمانداروں ان کے پاس یہودیوں کے لیے آمین اس کا نام اسرائیل ہوگا۔ ایک اور بات کلام میں لکھا ہے، لوکا کے انجیل میں یہ بات تھی، 21ویں باب کو نکالے اگر 24-25 آیت میں لکھا ہے اور وہ تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے۔ یہ اسرائیل کی بات ہوگی،
तलवार का लुकमा हो जाएंगे, असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। जब तक गैर कौमों की म्याद पूरी ना हो, यरूशलेम गैर कौमों से बमार होता रहेगा। ये गैर कौमों के कदमों के नीचे रहेंगे, यरूशलेम आज़ाद होगा। फिर 14 मई 1948 में जब उनको इसराइल मिला तो यरूशलेम उस वक्त भी आज़ाद नहीं था, उनके पास नहीं था, ये यॉर्डन के पास था। फिर 1967 में जॉर्डन से गलती हुई, उसने देखा ये छोटा सा मुल्क है इसराइल, इस पर हमला करता हूँ। तो फिर इसराइल ने जो बाजियां बांध दी थी उन्हें इसराइल यरूशलेम आजाद हो गया, इसराइल का उस पर कब्जा हो गया। तो बाइबल ये बात कह रही थी। 25वीं आयत में लिखा है, सूरज चांद सितारों में निशान जाहिर होंगे, जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी, कौमों को समंदर और उसकी लहरों के शोर से वो घबरा जाएंगे। डर के मारे जमीन पर आने वाली बलाओं की रात देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। 27वें आयत में, उस वक्त उस टाइम वक्त तो गनीमत जानो। उस वक्त क्या होगा? उस वक्त इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगे तो फिर से ध्यान हो जाना, क्योंकि तुम्हारी निजात करीब है हमारे। ये बातें खुदावंद आज के कलाम से नहीं कर सकते। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा कलाम के लिए। खुदा बरकत कलाम के लिए हम खुदा के नहाय शुक्रगुजार हैं। बस एक साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्वर को झुकाएंगे और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंदी हो पाक खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू अपने खादिम के वसीले से हमसे हम कलाम हुआ और अपने कलाम के भेद हम पर ज़ाहिर किए, हमें तकवीर रूहानी तौर पर कुव्वत बख्शी कि खुदा हम वक्त खुदा दुआ में गुजार सके, हम अपने दुआ के घंटों को खुदा बढ़ा सके। तेरा पाक रूह खुदा इस कलाम पर अमल करने में हमारी बड़ी रहबरी और रहनुमाई करे। जितने जानों में ने खुदा ये कलाम सुना है, हर एक की जिंदगी में सोग ना फल रहे हो, अपने खादिम को तो और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगा, सो पा लिया। आमीन। हमें अपने सरों को उठाएंगे, खुदा के जलाल में आगे बढ़ेंगे, भाई की रहनुमाई में के साथ मिलकर गीत गाएंगे और इसी दौरान हदीया नज़रानी भी इसकी हुजूरी में पेश करेंगे।
खालिश कर दे, यीशु तू ही कर सकता है। क्षमा उनको मदरस कर दे, यीशु तू ही कर सकता है। नाजिश को तू खालिश कर दे, क्षमा उनको मदरस कर दे। नाजिश को तू खालिश कर दे, क्षमा उनको मदरस कर दे। साउल को पौलुस बना दे, साउल को पौलुस बना दे। काम जब करता है तो यीशु तू, यीशु तू बदल देता है। 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 क्योंकि बेशक हालात को बदलने की कुदरत और कुव्वत सिर्फ यीशु नासरी के पास है। वही हमारे हर तरह के बुरे हालात को अच्छे हालात में बदल देता है। हम खुदा के नहाय शुक्रगुजार हैं आज की सारी इबादत के लिए, कलाम के लिए और प्रोसेस के लिए कि उसने हमें कुव्वत, हमें ताकत और हमें हिम्मत बख्शी कि हम उसके कलाम को सुने और समझे और उसकी तारीफ कर सके। अभी वक्त है कि हम शिफाइया दुआ में शामिल होंगे। जितने लोग भी महसूस करते हैं कि अपने लिए दुआ करवाना है या अपने अंदर कभी किसी तरह की कमजोरी फील करते हैं तो वो अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। फरमान भाई से दरख्वास्त है कि खुदा के मस्जिद पर आएंगे और शिफाइया दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज जो कलाम में खुदा उनके खादिम ने मुकद्दस कलाम में से जो खूबसूरत और अमीर बातें हमारे साथ शेयर की, आज हमने अपने आप को दुआया तौर पर सौंप कर खुदा जिस्मानी शिफा देने की कुदरत रखता है, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जिंदगी में पाकरों की मामूरी, रूहानी बेदारी और रूहानी शिफा। आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और अपने लिए दुआ करें। चल हम अपने आप को डेडिकेट करेंगे, डिवोट कर देंगे जिंदा खुदा के सामने और आज खुदा से मांगेंगे, या खुदावन मुझे दुआ करनी सिखा, या खुदावन मुझे दुआया तौर पर स्ट्रॉन्ग कर दे, मुझे दुआया तौर पर मजबूत कर। खुदावन मेरी दुआया लाइफ बहाल हो। खुदावन मैं दुआया तौर पर तुझ में बहाल हो जाऊं। खुदावन मेरी जिंदगी में काम कर। हालेलुया। लबरशी रसीता खबरसी ईरा बालारा रिशरा सीठो को बोरोसी ईरा बालारा सता खबरसी दे 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 सी लबोरोशी रोसी दे दे सी। खुदावन मेरे दुआया घंटे बढ़ जाए। खुदावन हम सब इज्तिमाई तौर पर खुदावन अपने आप को तेरे आगे सौंपते हैं तो हमारी जिंदगियों में गहरे तौर पर काम कर खुदावन, और हमारी तमाम खुदावन ऐसी सुस्ती को, इब्लीस की तरफ से रुकावटों को दूर कर जो हमें दुआ करने से दूर करती है। खुदावन मैं तेरा खादिम होते हुए अपने आप को सारी जमायत तेरे कभी हाथ की तरफ देता हूँ। एक एक जिंदगी में कसरत से काम कर खुदावन। आज तेरा मसला एक एक जिंदगी में ठहर जाए खुदावन। तेरी हजूरी आज एक एक जिंदगी में मांगता हूँ खुदावन। आज एक एक जिंदगी खुदावन दुआया तौर पर खुदावन मजबूत होती चली जाए खुदावन। आज से लोग खुदावन अपने आप को डेडिकेट करें खुदावन तेरे काम के लिए खुदावन, तेरे मिशन के लिए खुदावन, अपने आप को डेडिकेट कर दे खुदावन। एक एक जान को खुदावन तो आज अपने कंट्रोल में ले खुदावन। हम सब मुत्तफिक होके अपने आप को तेरे आगे खाली करते हैं, सरेंडर करते हैं
पाक रूह आज हमारी जिंदगियों में काम करे खुदावन। इसी के साथ खुदावन में तेरा खादिम होते हुए सारी जमायत के लिए बरकत की दुआ करता हूँ खुदावन। हर तरह की बीमारी को, कमजोरी को खुदावन तो अपने लोगों के दरमियान से दूर कर, मौजिजा कर, अपने बदन से शिफा बख्श खुदावन। तुझे शिफा का मंबा है, आज भी मौजिजात करता है, आज भी तो अपने आप को जिंदा साबित करता है सबूतों के साथ। और खुदावन तेरे सबूत, तेरे मौजिजात हैं जो तू अपने लोगों के दरमियान करता है खुदावन। आज एक एक जिंदगी तुझ में रिहाई को रिसीव करे, आज एक एक जिंदगी खुदावन शिफा को रिसीव करे। आज तेरे लोग खुदावन माली तौर पर बहाल हो। आज खुदावन हर तरह की इब्लीसी तासीरें जो तेरे लोगों को माली तौर पर मकरूज किए हुए हैं खुदावन, यीशु नाम से खुदावन ये तमाम खुदावन लानते तेरे लोगों की जिंदगियों से दूर हो खुदावन। तेरे लोग खुदावन आज रूहानी, जिस्मानी और माली तौर पर बहाल हो, शिफा को रिसीव करें खुदावन। बरकत दे जितने लोग खुदावन आज तेरे घर पे मौजूद हैं खुदावन, एक एक जिंदगी में कसरत से काम कर। जितने लोगों ने तेरे दिए हुए में से तुझे वापस लौटाया, उन्हें कसरत से बरकत दे। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम सब दुआएं बारे में सीखोगे। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में लगा बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। कलिमाते बरकत खुदा के काबिल अदा करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तुम्हें बरकत दे और तुम्हें महफूज रखे। खुदा अपने चेहरे का नूर तुम पर जलवा दे और तुम पर मेहरबान है। खुदा अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मतवज्जा करे और तुम्हें सलामती बख्शे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत रूह ज़मीन पर इमाम मुतदस्सिन के साथ, हाज़िर जमायत के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। हालेलुया। इबादत का वक्त खत्म होता है, एक दूसरे की खैरियत चाहे और खैरियत से रुखसत हो। कल हफ्ते की और परसों इतवार की इबादत सुबह 10 बजे है। आप सब अपने खानदानों के साथ हैं ताकि खुदा के नाम के जलाल दें।